Hello everyone, my name is Divyanshi Jain and my roll number is 245011, and the topic that we are going to discuss today is Jacobian. Now, what is Jacobian? Jacobian is if I have two functions named u and v and I have to differentiate it with respect to x and y, then the determinant del u upon del x, del u upon del y, del v upon del x and del v upon del y is known as the Jacobian of u and v with respect to x and y. Similarly, if I have three variables u, v, w and I have to differentiate it with respect to x, y and z, then first I'll take u and differentiate it with respect to x, y and z, then v and differentiate it with respect to x, y, z, and then w and differentiate it with x, y and z. And the determinant that I'm going to get is known as the Jacobian of u, v, w with respect to x, y and z, and it's represented by del u, v, w upon del x, y and z. Let's take an example to understand this more clearly. For example, I have x equals to r sin theta cos phi, y equals to r sin theta sin phi, and z equals to r cos theta. Then the question is that I have to show that the Jacobian of this with respect to Jacobian of x, y and z with respect to r, theta and phi is equals to r square sin theta. So first I'll take x and differentiate it with respect to r, theta and phi. Similarly, I'll take y and differentiate it with r, theta and phi, and z with r, theta and phi. As I have x equals to r sin theta cos phi, so when I'm differentiating it with respect to r, then I'll only consider r and these terms will be considered as constant. I'll neglect these terms as I'm just partially differentiating it with respect to r. So as we know, r differentiation of r is 1, so I'll get del x upon del r equals to sin theta cos phi. Del x upon del theta is differentiation with respect to theta, so we know sin theta का differentiation is cos theta, so r cos theta cos phi, and del phi के रिस्पेक्ट में जब हम करेंगे तो ये वाले टर्म को कंसिडर करेंगे. cos phi का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस साइन phi, सो माइनस r sin theta sin phi. सिमिलरली del y अपॉन del r, y हमें गिवन है r sin theta sin phi, r के रिस्पेक्ट में करेंगे अगेन आएगा sin theta sin phi, थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे sin theta वाले टर्म को कंसिडर करेंगे और हमें मिलेगा r cos theta sin phi. देन phi के रिस्पेक्ट में जब हम कर रहे हैं तो ये वाला टर्म देखेंगे और इसको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे और हमें मिलेगा r sin theta cos phi. del z हमें गिवन है r cos theta, तो r के रिस्पेक्ट में जब कर रहे हैं तो cos थीटा मिलेगा, थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो cos थीटा का डिफ्रेंसिएशन इज माइनस साइन थीटा, सो माइनस r साइन थीटा. एंड क्योंकि यहाँ फाई का कोई टर्म इन्वॉल्व ही नहीं है, इस वजह से इसका डिफ्रेंसिएशन ज़ीरो हो जाएगा. अब हमें इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है. थर्ड रो को लेकर हम एक्सपैंड करते हैं तो हमें मिलता है आर स्क्वायर साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन क्यूब थीटा. आर स्क्वायर साइन थीटा को कॉमन ले लेंगे, अंदर मिलेगा हमें कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जिसकी वैल्यू 1 होती है. सो फाइनल आंसर हमें मिल जाता है आर स्क्वायर साइन थीटा, एंड यही हमें प्रूव करना था. आर नेक्स्ट टॉपिक इज चेन रूल इन जैकोबियन. चेन रूल ये कहता है कि अगर हमारे पास u और v दो फंक्शंस हैं जो कि x और y में हैं, और x और y फंक्शंस हैं जो कि फर्दर r और थीटा में हैं, तो चेन रूल के थ्रू हम उसका जैकोबियन कैसे निकाल सकते हैं. u और v फंक्शन है x और y में और x और y फर्दर फंक्शन है r कॉमा थीटा में, और हमें निकालना है डेल u कॉमा v अपॉन डेल r कॉमा थीटा. तो पहले हम करेंगे डेल u कॉमा v और जाएंगे इस पर, दैट इज़ डेल x कॉमा वाई इंटू डेल x कॉमा वाई इंटू डेल r कॉमा थीटा. सो पहले हम ये वाला टर्म लेते हैं और डिनोमिनेटर में ये लिखते हैं, फिर ये वाले टर्म पे जंप करते हैं इस टर्म पे. तो हम ऐसे इसको याद कर सकते हैं. और डिटर्मिनेंट हमें निकालना है इसका, तो एज वी नो इसको हम एक डिटर्मिनेंट मानते हैं, इसको एक डिटर्मिनेंट लेंगे. सो इस वाले को जब हम लेते हैं तो वही जैसे हम नॉर्मली जैकोबियन निकालते हैं, डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल वाई. सिमिलरली इधर करेंगे डेल एक्स अपॉन डेल आर, डेल एक्स अपॉन डेल थीटा,
del y अपॉन del r एंड del y अपॉन del थीटा, एंड इसका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे. del u की वैल्यू 2xy हमें गिवन है. सो del u अपॉन del x जब हम कर रहे हैं तो हमें मिलेगा 2y. फिर del u अपॉन del y जब कर रहे हैं तो 2x मिलेगा. देन del v अपॉन del x, ये वाला टर्म हम कंसिडर करते हैं तो इसमें हम y वाले टर्म को निगलेक्ट कर देंगे, ज़ीरो हो जाएगा और सिर्फ इसको देखेंगे 2x मिलेगा. देन हमें चाहिए del v अपॉन del y, इस वाले टर्म को देखेंगे माइनस साइन है, इस वजह से माइनस 2y आ गया. सिमिलरली आते हैं del x अपॉन del r. del x हमें गिवन है, ये r के रिस्पेक्ट में करेंगे सो cos थीटा मिल गया. del x को थीटा के रिस्पेक्ट में जब कर रहे हैं cos थीटा का माइनस साइन थीटा होता है तो माइनस r साइन थीटा. देन del y अपॉन del r, साइन थीटा आ गया, और del y अपॉन del थीटा, सो इसका होता है r cos थीटा आ जाएगा. इसका डिटर्मिनेंट हम सॉल्व करेंगे, हमें ये मिलेगा, एंड इसका सॉल्व करेंगे r cos स्क्वायर थीटा प्लस r साइन स्क्वायर थीटा. एज वी नो cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा इज़ 1, तो यहाँ से हमें r मिल जाएगा. एंड फाइनली हम इस रिज़ल्ट को ऐसे लिख सकते हैं. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी इन्वर्स. एज वी नो जैकोबियन अगर हम j से रिप्रेजेंट करते हैं तो उसका इन्वर्स हम j डैश से रिप्रेजेंट करेंगे, और उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इक्वल्स टू 1 आता है. फॉर एग्जाम्पल j हमें गिवन है del u कॉमा वी अपॉन del x कॉमा वाई, तो उसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, जस्ट इसका रेसिप्रोकल, दैट इज़ del x अप कॉमा वाई अपॉन del u कॉमा वी. थैंक यू.